Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing fine. I'm your course instructor Amreen Ahmed, and I welcome you to yet another lecture of English. As you know that with me, are we are rather going through or we are discussing the poetry section. Previous week, we discussed the first poem, and we I also told you how to attempt the question of reference to context. So today we'll be starting poem number 2, and this is page number 53 of book 3. So I advise you people, you also open up your book and be on the page number 53 of book 3 so that you may follow me easily. Now before starting the poem, let me remind you that there is a Google form attached for your attendance, and your attendance is of utmost importance. What you have to do, you have to fill the form and submit it. In this way, we'll know that you have attended the lecture. We also keep the record of your attendance. Plus, do subscribe the channel so that you are constantly notified about the daily lectures. So today, girls, we start poem number 2, that is Night Mail, composed by W.H. Auden. Now, W.H. Auden, let's little bit discuss about the poet. W.H. Auden stands for Winston Hugh Auden. The complete name of the poet is Winston Hugh Auden. He is an Anglo-American poet. Anglo-American means British plus American. Okay. Now, coming to his poetry, he is famous for his stylistic and technical element. It means to say that his poetry is full of, you can say, musicality. Music element is too much dominant over here. और जो टेक्निकल एलिमेंट होते हैं लाइक राइमिंग स्कीम हो गई, मीटर हो गया, ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं. इनकी थीम्स की बात करें तो ही हैज़ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन लव, in morality, and in politics. So let's come to this very poem. The poem's title is Night Mail. Now what is night mail? Dear student, night mail is actually a train. ट्रेन से मुराद एक ट्रेन होती है ये जिसको हम माल गाड़ी भी कहते हैं. ये ट्रेन जो है ये अपने साथ क्या लेकर, ये रात को चलती है और मोस्टली ये पोस्टल और डाक की चीज़ें जो है ना, डाक बजरिए डाक जो चीज़ें भिजवाई जाती हैं वो इसके अंदर होती हैं. ठीक है, ये वो ट्रांसपोर्ट करती है. दैट एंड इट इज़ कॉल्ड नाइट मेल. So night mail is basically a dream. Coming to context of the poem, this poem is actually written for a documentary. W.H. Auden ने बेसिकली ये पोएम जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री के लिए लिखी थी. और ये डॉक्यूमेंट्री किसके बारे में थी? ये रेलवे सिस्टम के बारे में थी. रेलवेज ऑफ लंदन रेलवे और आई थिंक स्कॉटलैंड रेलवे, इन दोनों ने मिलके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. तो उस डॉक्यूमेंट्री में ये नाइट मेल जो है वो पोएम लिखी गई थी. नाउ देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 couplets are given to you within this poem, but originally this poem is very lengthy. ये उस डॉक्यूमेंट्री में ये पोएम मौजूद है और ये पोएम बहुत लेंदी है. आपको सिर्फ उसके 8 कपलेट्स जो हैं वो दिए गए हैं. नाउ कपलेट एक्चुअली मीन्स द स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स हैविंग राइमिंग स्कीम. दोनों की जो बॉर्डर ऑर्डर, ये जो हम आवाज़ लफ्ज़ हैं ये राइम्स कहलाते हैं. आई थिंक वी हैव ऑल्सो डिस्कस राइम अर्लियर, and if not, let me tell you now. The words which have same ending sounds are called rhyming words. See, आप देख सकते हैं पहली लाइन में बॉर्डर, दूसरी लाइन में ऑर्डर, दोनों के जो एंडिंग साउंड है वो सेम है और सिर्फ इनिशियल साउंड जो है वो डिफरेंस है. यहाँ बॉर्डर में ब साउंड है इनिशियल, ऑर्डर में ओ साउंड इनिशियल है. ठीक है, अदरवाइज इनका रेस्ट ऑफ द साउंड आर सेम. इसी तरह आप देखें पुअर एंड डोर, अगरचे यहाँ साउंड सेम नहीं है बट दीज टू वर्ड्स आर एक्चुअली आई राइम मतलब ये देखने में एक जैसे लगते हैं. देखिए ओ ओ आर डी ओ आर सेम नज़र आ रहे हैं. इसी तरह क्लाइम, टाइम, बोल्डर, शोल्डर, पासेस,
crosses, approaches, coaches, course, across, wakes, shakes. Now these all are actually the rhyming word. Now you must have fair idea about the couplet कि couplet होता है क्या. couplet basically एक stanza होता है 2 lines का जिसकी last के दोनों words जो है वो rhyme कर रहे होते हैं. Now let's start the poem. Let me again tell you, this is page number 53. So you be on page, and this is poem number 2, Night Mail. This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. तो राइटर इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द सीन ऑफ द नाइट मेल. वो कह रहे हैं कि देखिए ये नाइट मेल है क्रॉसिंग द बॉर्डर. क्रॉसिंग बॉर्डर मतलब ये डिफरेंट बॉर्डर्स को क्रॉस करती हुई कहीं दूर दूर से आ रही है, ठीक है. और ये अपने साथ क्या ला रही है, चेक और पोस्टल ऑर्डर. चेक्स और पोस्टल ऑर्डर से मुराद क्या है, ये खतूत लेकर आ रही है कुछ, और साथ में कुछ मनी ऑर्डर्स हैं और चेक्स हैं. ये यानी कि जिनका भी पोस्ट बाय पोस्ट सामान आ रहा है वो इन्हें ये नाइट मेल जो है वो लेकर आ रही है. Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner, the girl next door. वो कह रहे हैं ये जो नाइट मेल है उसके अंदर जो है पैगामात हैं डिफरेंट, और लेटर्स हैं, ख़त हैं, और ये ख़त सबके लिए, मतलब अमीरों के ख़त हैं इसमें जो अमीर लोगों के लिए आए हैं और कुछ पुअर लोगों के. ना यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस वेरी पोएम वाज रिटन इन द 19th century, and 19th century और early 20th century the railway system was very much you can say extensive. अभी भी खैर बहुत ज़्यादा रेलवे जो है वो एक्सटेंसिव है, लेकिन उस ज़माने में जो पोस्ट का मतलब डाक का जितना भी नज़ा, आजकल तो बहुत कम्युनिकेशन फास्ट हो चुकी है, लेकिन पहले जो है वो बेसिक कम्युनिकेशन जो है वो मोस्टली डाक के ज़रिए ही हुआ करती थी. तो इसीलिए चाहे कोई बहुत अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग जो राब्ता आपस में करते थे, राब्ते का बड़ा ज़रिया जो थी वो क्या थी, डाक थी. और डाक किस में आया जाया करती थी, नाइट मेल में. तो ये राइटर कह रहे हैं लेटर्स फॉर द रिच, इसमें अमीरों के लिए भी लेटर्स हैं और पुअर के लिए, ठीक है. यानी कि कहने का मतलब ये कि नाइट मेल जो है वो सबको इक्वली सर्व कर रही है, इक्वली सबकी खिदमत करती है. द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, और वो जो कॉर्नर पे एक छोटी सी दुकान है उसके लिए भी लेटर आया उसके ऑनर के. और वो जो लड़की है जो बराबर वाले दरवाजे में रहती है या बराबर वाले घर में रहती है उसके लिए भी है. पुलिंग अप वी टॉक अ स्टडी क्लाइम द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम. वो कहते हैं ये जल्दी जल्दी बीटॉक में से गुजरती है, ठीक है. बीटॉक आई थिंक एक जगह का नाम है, और राइटर ये कह रहे हैं कि पुलिंग अप बीटॉक अ स्टेडी क्लाइम. स्टेडी क्लाइम मतलब क्लाइम कहते हैं बेटा स्लंटेड जो एक सरफेस होती है, तिरछी सरफेस, जैसे चट्टान की, जैसे चढ़ाई, ठीक है. तो वो कहते हैं ये पुलिंग अप बीटॉक, ये बीटॉक की तो पुल हो रही, खिंची जा रही है, ठीक है. और ये जो इसका रास्ता है ये स्टडी क्लाइम है. स्टडी मतलब बिल्कुल तीखा चट्टानी तिरछा रास्ता है, लेकिन द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर. ग्रेडियंट मतलब ये जो रास्ते की आप कह सकते हैं स्लंटनेस है, यानी कि इसके तिरछापन है, वो इतना तीखा है, वो इतना स्लोपी है, इतना मतलब उसका एंगल जो है वो इतना ज़्यादा तिरछा है कि ये उसके अगेंस्ट है. अगेंस्ट मतलब ज़ाहिर से बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ता है, बहुत फिर मतलब बड़ी मुश्किलों से वो चढ़ पाती है इसके अगेंस्ट. बट शी इज़ ऑन टाइम. बट नो मैटर वट एवर द सर्कमस्टांसेस और वट एवर द पाथ इज़ अगेंस्ट हर, बट शी इज़ ऑन टाइम. वो हमेशा कब आती, टाइम पे पहुंचती है. ये है नाइट मेल लंदन की, इसलिए टाइम पे पहुंचती है. Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder. राइटर इस स्टेंजा में कह रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ से गुजरती है. अब देखें सीनिक ब्यूटी आपको नज़र आ रही है, रास्ते में से गुजरते हैं. डिस्क्रिप्टिव किस्म की एक आपको 8 कपलेट्स जो है वो दिए में. अब ये बता रहे हैं कि ये कॉटन ग्रास मतलब कपास के खेतों के करीब से गुजरती है, और मूरलैंड बोल्डर, और जो वहाँ पे मूरलैंड है जो मतलब ग्रीन एरिया है वहाँ पे बोल्डर्स पड़े हैं, पत्थर है, पत्थरों में से गुजर रही होती है. शोवलिंग वाइट स्टीम, बोल्डर मतलब बेटा छोटे मतलब पत्थर को बोल्डर कहते हैं. शोवलिंग मतलब थ्रोइंग, कोई चीज़ बाहर निकालना आवाज़ के साथ, शोवल करना. तो शोवलिंग वाइट स्टीम ऑन हर ओवर हर शोल्डर, और ये अपने कंधे के ऊपर से क्या फेंक रही है, वाइट स्टीम. स्टीम मतलब भाप, सफ़ेद कलर का. जब ये चल रही है तो भाप और धुआं जो है वो इसके शोल्डर यानी कंधों के ऊपर से गुजर रहा है. नाउ सी इन दीज 2 लाइन्स एक्चुअली नाइट मेल इज़ पर्सोनिफाइड.
व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन क्या होती है बेटा? राइटर क्या करते हैं, पोइट क्या करते हैं, वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ऐसे एड्रेस करते हैं जैसे कि वो कोई लिविंग थिंग हो, ऐसे उनसे मुखातिब होते हैं। अब आप देखें ये क्या कह रहे हैं कि जनाब जो आपकी नाइट मेल है उसके शोल्डर पे से, उसके कंधे पे से क्या निकल रहा है? वाइट धुआं निकल रहा है, शोभले। अब आप देखें नाइट मेल के कंधे तो नहीं होते, कंधे तो सिर्फ किसके होते हैं? लिविंग थिंग्स के होते हैं, इंसानों के होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है। बाय पर्सोनिफिकेशन आई मीन द राइटर personifies, राइटर मेक नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग, वो उनको ऐसे एड्रेस करता है जैसे कि वो लिविंग थिंग हो। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइस, अ लिटरेरी डिवाइस विच इज़ यूज इन पोइट्री एंड इट गिव्स पोइट्री इट्स ब्यूटी। ठीक है, खूबसूरती पैदा करती है पोइटिक एक्सप्रेशन में। नाउ सी द नेक्स्ट कपलेट। Snorting noisily she passes, silent miles of wind bent grasses. वो कहते हैं स्नॉटिंग नॉइजली। स्नॉटिंग मतलब नाक से जो अक्सर आवाज़ निकाली जाती है उसको स्नॉटिंग कहा जाता है। तेज़ी के साथ, मतलब कहने का मतलब ये है कि नो आई एम सॉरी, वो स्नॉर्लिंग होता है। ओके जी, स्नॉर्लिंग भी होता है, स्नॉटिंग भी होता है। ठीक है जी, स्नॉटिंग साउंड भी होता है जो एक नाक से एक आवाज़ देंगे, जैसे खर्राटे टाइप या किसी की नाक बंद हो तो उसमें से जो आवाज़ आती है उसको स्नॉटिंग कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत तेज़ी के साथ जो है शोर मचाती हुई जाती है। यू मस्ट हैव सीन ट्रेन्स, आपने शायद ट्रेन्स देखी होंगी, तो जब वो चलती हैं तो बड़ा शोर मचाती हैं, उसमें से आवाज़ें निकलती हैं और वो बड़े मज़े की आवाज़ें होती हैं। मतलब बच्चे भी अक्सर खेल रहे होते हैं इस तरह, कूक छुक 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 छुक, मतलब इस तरह की आवाज़। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी यही कह रहे हैं कि ये बहुत नॉइज़िली अपनी सारी जगह पे मतलब ये पास करती है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड एंड ग्रासेस। अब देखिए, ऊपर नॉइज़ की बात कर रहे हैं, नीचे साइलेंस की बात कर रहे हैं। ये एक खूबसूरती है राइटर की कि किस तरह वो डिफरेंट इमेजेस को, कंट्रास्टिंग इमेजेस को वीव आउट कर रहे हैं विद इन वन कपलेट। कि वो कह रहे हैं वो खुद इतना शोर मचाती हुई गुजरती है, लेकिन वो जिस जगह से गुजरती है वो साइलेंट माइल्स होते हैं। साइलेंट माइल्स मतलब मीलों तक खामोशी फैली होती है। विंड बेंड ग्रासेस, और उसमें क्या होती है, घास लगी हुई होती है उस रास्ते में, और वो हवा से झुक जाती है। झुक जाती है, जाहिर है जब वो बहुत तेज़ी से गुजरती है, इर्द गिर्द हवा चलती है तो ग्रास जो है वो झुक जाती है। Birds turn their head as she approaches, stare from the bushes at her blank-faced coaches. वो कहते हैं जब वो गुजरती है तो ज़ाहिर वो चूँकि अब गैर आबाद इलाकों में से भी बहुत ज़्यादा गुजरती है, तो जो परिंदे होते हैं उन इलाकों में वो क्या करते हैं, अपनी हेड जो है या अपना सर जो है वो घुमा के पीछे देखते हैं कि जैसे वो आ रही होती है, और फिर वो झाड़ियों पे से झाँकते हैं। स्टेयर मतलब किसी को देखना, और बुशेस मतलब झाड़ियाँ, वो झाड़ियों में होते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं। एट ब्लैंक फेस्ड कोचेस। ब्लैंक फेस्ड कोचेस मतलब कोचेस कहते हैं बेटा ट्रेन की जो बोगियाँ होती हैं उनको कोचेस कहा जाता है। ठीक है, ब्लैंक फेस्ड क्यों कहा इसे? ब्लैंक फेस्ड इसलिए कहा कि this is not a passenger train. In a passenger train there are a number of the people, but here in the night mail there is no one there. यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है। दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड ब्लैंक फेस्ड। ब्लैंक फेस्ड मतलब खाली चेहरे वाले, यानी कि यहाँ पे कोई लोग जो है वो नज़र नहीं आ रहे। Sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paths across. वो कहते हैं कि शीप डॉग्स क्या होते हैं? वैसे कुत्ते जो मतलब शीप्स की या जो रेवड़ होते हैं, भेड़ भेड़ वगैरह के, उनकी रखवाली करते हैं। तो वो इसके रास्ते में हाइल नहीं होते। ठीक है, तो उन्हें पता ये कि शीप डॉग्स देखा है आपने, अगर उन्हें थोड़ा सा भी ख़तरा महसूस हो तो वो बहुत ज़्यादा भौंकते हैं और मतलब उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट दे आर नाउ वेरी मच यूज टू ऑफ दिस नाइट मेल। लेकिन नाइट मेल से उन्हें कोई मसला नहीं, और उन्हें पता है कि वो नाइट मेल का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, ना ही उसका रास्ता रोक सकते हैं, ना ही उसे वापस भेज सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे स्लम्बर ऑन, दे कीप ऑन स्लीपिंग, वो सोते रहते हैं विद पॉज अक्रॉस, और उनके पंजे जो है वो आगे से अक्रॉस होते हैं, क्रॉस बना के वो सो रहे होते हैं आराम से। इन द फार्म शी पासिस नो वन वेक्स। वो कहती है फिर अभी तो आपको क्या बताया गया कि पहले बेआबाद जंगलों बेआबानों में से गुजर रही थी, फिर ये ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ रेवड़ थे, शीप डॉग्स थी, और फिर अब ये कहाँ से गुजर रही है? फार्म से। फार्म मतलब ऐसी जगह जो कि हैबिटेट है, मतलब यहाँ लोग मौजूद हैं, रह रहे हैं। ठीक है, इन द फार्म शी पास नो वन वेक्स, लेकिन कोई जागता नहीं है। क्यों? बिकॉज उनके लिए एक रूटीन की बात है ना,
कि ट्रेन मुस्तकिल जो है वो गुजरती होती है, अक्सर गुजरती होती है उनके यहाँ से। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स। लेकिन सिर्फ होता क्या है, जब वो जाती है ट्रेन तो किसी घर के बेडरूम में एक जग रखा हुआ होता है पानी का, वो हल्के हल्के हिलने लग जाता है। और क्यों हिलने लग जाता है? यू ऑल नो दैट व्हेन ट्रेन पासेस देयर इज वाइब्रेशन। जब ट्रेन पास करती है, क्योंकि ट्रेन जो है वो एक बड़ी हैवी जो है वो व्हीकल है, तो जब वो चलती है तो ज़मीन में गड़गड़ाहट सी एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और वो वाइब्रेशन दूर तक महसूस की जा सकती है। तो उसी वाइब्रेशन के थ्रू जो है वो कहीं भी पड़ा हुआ एक जग जो है बेडरूम में, वो हल्के हल्के जेंटली है, बहुत मामूली सा हल्के से शेक्स हिलने लग जाता है। सो दिस इज द पोएम नाइट मेल, and we have discussed a little bit about the author, and this is also written over here in your book about the poet. You may go through it, and the theme is discussed in your book, and I think we have discussed this. Coming to glossary, बॉर्डर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बॉर्डर मीन्स बाउंड्री, हदें। ग्रेडियंट्स कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, तिरछी कोई भी चीज़ हो उसको। बोल्डर मतलब राउंडेड स्टोन या छोटे छोटे पत्थर टाइप या छोटी चट्टाने, बड़े पत्थर या छोटी चट्टाने, सॉरी। शॉवल्ड मतलब फेंकना कोई चीज़। स्लम्बर मीन्स स्लीप। I think you can write two. This is second. Sorry, exercise. Choose the correct answer. The night mail is an express train, a passenger train, a train that carries mail. So the answer C is correct. The night mail reaches in time, on time, before time. See here, what is written? Must be on time. She is on time. Okay. सो यू वॉन्ट बी टिकिंग इन टाइम, आप इन टाइम को करेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक रॉन्ग प्रिपोजिशनल फ्रेज है। ऑन टाइम इज द राइट वे टू राइट दिस। ऑन द अराइवल ऑफ नाइट मेल द बर्ड्स आर, बर्ड्स क्या होते हैं? दे फ्लो अवे, दे प्लीज, दे फ्राइटन। क्या करते हैं? देखिए बर्ड क्या फ्राइटन हो जाते हैं या प्लीज हो जाते हैं या उड़ जाते हैं? देखिए वो उड़ते तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, उसे चुपके से वहाँ से देखते हैं, बुश से, ठीक है, बुशेस के अंदर से। तो स्टेयर फ्रॉम द बुशेस एट हर ब्लैंक फेस कोचेस। तो फिर वो क्या करते हैं? दे मस्ट बी little bit frightened or maybe pleased. Why do the sheepdogs continue to sleep on the arrival of the train? Because they cannot attack it? Yes. Because they cannot bite it? No. Because turn her course? No. Yes. So answer C is correct, because they cannot turn her course, and that is why they don't do anything. Mark the statements true and false. The night mail travels by day. No, it's wrong. नाइट मेल, द वेरी टाइटल, इसका जो नाम ही है वही आपको बता रहा है कि ये नाइट मेल। इट ब्रिंग्स फ्लावर एंड प्रेजेंट्स फॉर द पीपल? नो, इट ब्रिंग्स एक्चुअली द लेटर। इट ब्रिंग्स लेटर फॉर द रिच एंड पुअर? यस, दैट इज राइट। इट स्नॉट्स नॉइजली लाइक अ हॉर्स? यस, इट स्नॉट्स नॉइजली। इट डिस्टर्ब्स द लाइफ ऑन द फार्म? नहीं जी, लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये रात को पास कर रही होती है, लोग सो रहे होते हैं, लोग हैबिचुअल होते हैं इसकी आवाज़ के, तो वो कोई भी उठता नहीं। The children peep from the bushes at a blank faced coaches? No, actually these are not children, rather the birds which peep from who peep from the bushes. Now the next question: write two more rhyming words in each line. That is very easy. I have already told you what rhyming words are. Male, मेल का क्या हो सकता है आप खुद भी सोचें। सेल, ठीक है। टेल, नाइट का क्या हो सकता है? माइट, राइट। लेटर का क्या हो सकता है जी? लेटर का हो सकता है बेटर, शैटर। ओके, सो आई हैव मेड two rhyming words. You may carry on and you can even stretch the list to 10 rhyming words. So this is all about poem number 2, that is Night Mail. If you have any question, any confusion, any query, you may drop in the comment section and I will answer you over there. So tomorrow inshallah we'll be starting the third poem. Until then, take care. Allah Hafiz.